chapter 4. The topic will be versatile nature of carbon. Before that, I have given some homework. Okay, these 5 structures I have given to me. And now all these structures, now you can check if you have done your homework, then check whether it is correct or not. Okay, these are the correct structures. Clear? And after that, now I am going to start the versatile nature of carbon. Okay, you see all these. Now in the versatile nature means carbon is having somewhat different nature as compared to other elements. Okay, carbon is having different nature as compared to other elements. Means why it is so? Because the carbon is small, and second, it is having 4 electrons in the outermost shell. So first we can say that for the versatile nature of carbon, the first cause is the tetravalency. Okay, tetravalency means the carbon is having 4 electrons in its outermost shell, and it needs 4 more electrons to complete the octet. Okay, so that is known as the tetravalency. Tetravalent मतलब 4 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. What is the carbon is having 4 electrons and it would like to complete its octet by sharing 4 electrons. Now see, we have make this structure with carbon triple bond, but carbon cannot form 4 bonds. Why it is so? Because for carbon to with 4 electron from other carbon, it is very difficult to adjust. The energy will be very high and stability will be very less. Means carbon cannot form 4 bonds. Why? Because of its small structure. है ना. और इसी small structure के कारण वो आपस में 4 बॉन्ड तो नहीं बना पाता है, पर वो दूसरे एलिमेंट के साथ बहुत सारे बॉन्ड बना पाता है. ठीक है. से कार्बन जो है वो क्या करता है? इट कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स. इट मे बी द ब्रांच कंपाउंड, इट मे बी द स्ट्रेट चेन. अगर एक लाइन में जुड़े हैं सारे कार्बन तो अपन क्या कहेंगे? स्ट्रेट चेन कंपाउंड. अगर ये इन्होंने ऐसी साइड में भी कार्बन जुड़ गया है ना, then I called it as a branched chain compound. क्या बोलेंगे इसको? branches आ गए, then we called it as a branched chain. Sometimes your carbon can form double bond, है ना. Sometimes it may form triple bond. Total तो tetravalent है, मतलब देखो 1, 2, 3 and 4 bonds. 1, 2, 3 है ना. तो यहाँ क्या आएगा? H आएगा. Got this? So in this manner that I will explain you how these compounds are formed. Got this? So because of this tetravalency, carbon can form 4 bonds with itself and with other elements also. And as it is going to form different type of bonds with itself and with other element, कौन हो सकता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, किसी के भी साथ बॉन्ड बनाते हैं ना. और इस टेट्रावेलेंसी और इसकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, जिसको क्या कहते हैं अपन? सेकंड इज कैटिनेशन. So because of this self-linking property, that is known as catenation. Definition क्या हो गई catenation की? The self-linking property of an element is known as catenation. तो catenation और tetravalency, इन 2 चीजों के कारण क्या हो गया? कार्बन कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स. इतने सारे कंपाउंड बना दिए कार्बन ने कि इसकी स्टडी के लिए एक अलग से ब्रांच खोलना पड़ गई. एंड दैट ब्रांच इज नोन एज योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. Got this? So in organic chemistry we are going to study about the carbon and their derivatives. Got this now? So what is there? Because of tetravalency. Tetravalency means it can form 4 bonds with carbon also and with other elements also. है ना. और दूसरा हो गया कैटिनेशन. मीन्स सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट. और ये सिर्फ कार्बन में होती है कि 100-1000 कार्बन एक साथ जुड़ के और लंबी लंबी लॉन्ग चेन या ब्रांच्ड वाले या डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स बना सकते हैं, है ना. कोई दूसरा एलिमेंट इतने सारे नहीं बना पाता. उसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कार्बन. इट कैन फॉर्म बॉन्डिंग, इट कैन डू द बॉन्डिंग विथ इटसेल्फ और विथ अदर एलिमेंट्स ऑल्सो, है ना. उसको क्या कहते हैं? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, है ना. मैंने क्या कहा कि ये सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है, ट्रिपल भी बना सकता है. इफ इट इज गोइंग टू फॉर्म सिंगल बॉन्ड, एग्जाम्पल क्या हो गया? CH4, जिसका स्ट्रक्चर अपन ने बनाया था. ठीक है. डबल बॉन्ड में क्या बनाया था अपन ने? CH2 डबल बॉन्ड CH2, एंड इट कैन फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH.
whenever the carbon is forming single bond with carbon itself, then we called it as a saturated hydrocarbon. Okay. If it is going to form double and triple bond, then we called it as a unsaturated हाइड्रोकार्बन. ठीक, मतलब कार्बन क्या कर रहा है, दो तरह के कंपाउंड बना रहा है. वन इज योर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच इज हैविंग सिंगल बॉन्ड इन इट, है ना, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच में हो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इन इट. ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द कार्बन, है ना. और इन सबको अपन क्या कहते हैं, व्हेनेवर योर कार्बन इज गोइंग टू फॉर्म कंपाउंड कंबाइनिंग विद कार्बन एंड हाइड्रोजन plus other element may be there or not, then such compounds are known as your hydrocarbon. ठीक है, मतलब पहली चीज क्या हो गई, कार्बन कैन शो टेट्रावेलेंसी एंड कैटिनेशन, एंड बिकॉज ऑफ दीज टू प्रॉपर्टीज कार्बन कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स. जब उसने बहुत सारे कंपाउंड बना लिए, उन कंपाउंड को अपन ने क्या कह दिया, कॉमनली वी कॉल्ड देम एज ए हाइड्रोकार्बन. Okay, now your hydrocarbon will be divided into two parts. What are these? Saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon. ठीक है, then these hydrocarbon, इसमें जरूरी चीज क्या है, they must have carbon and hydrogen. The other element may be there or may not be there. ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पर कार्बन और हाइड्रोजन का होना मस्ट एकदम, ये तो मिलेगा ही मिलेगा तुमको. क्लियर है. अब देखो मतलब क्या हो गया, बिकॉज ऑफ दीज टू प्रॉपर्टीज, इन दोनों प्रॉपर्टी के कारण अपनी एक नई ब्रांच बन गई. कौन सी हो गई वो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसकी स्टडी करी, हाइड्रोकार्बन्स की. हाइड्रोकार्बन्स को अपन ने कैसे क्लासिफाई करा, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ बॉन्ड्स. इफ दे आर हैविंग सिंगल बॉन्ड, then they are known as saturated hydrocarbon. ठीक है, and if they are having double or triple bond, किसके बीच में होगा, कार्बन कार्बन के बीच में, then we call them as a unsaturated hydrocarbon. ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया C2H6, इसका हो गया C2H4 और C2H2. और अब तुम पहचानोगे कैसे कि ये सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड है. सबसे बढ़िया है, एक मोमबत्ती जलाई और एक अपनी गैस जलाई, है ना, एलपीजी. एलपीजी जब भी जलती है तो येलो फ्लेम के साथ जलती है. सो व्हेनेवर बी योर फ्लेम विल बी येलो, देन वी कैन से द कंपाउंड इज सैचुरेटेड कंपाउंड, है ना. हमेशा येलो फ्लेम से कौन जलेगा, सैचुरेटेड कंपाउंड. सो व्हेन योर saturated compound is there, then it burns with the yellow flame, and if they are burning with the blue flame, and if they are burning with the yellow flame, we call them as a unsaturated compounds, है ना. एक बार और बता रही हूँ, saturated compound हमेशा किससे जलेंगे, ब्लू फ्लेम से. ठीक है, पहले गड़बड़ बोल दी थी. और unsaturated किससे जलेंगे, येलो से, है ना. अपना गैस बर्नर में कौन सी आती है, ब्लू फ्लेम आती है. उसमें क्या होता है, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन. ठीक है, क्या होता है थोड़े दिन बाद समझ में आएगा तुमको. बट व्हेनेवर बी अ कंपाउंड इज सैचुरेटेड, इट बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, एंड इफ दे आर बर्निंग विद येलो फ्लेम, वी कैन से दैट द कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड. जैसे मोमबत्ती जलती है, कैंडल किससे जलेगी, इट ऑलवेज बर्न्स विद द येलो फ्लेम. मीन्स योर कैंडल में जो वैक्स है वो किसका बना है, इट इज मेड अप ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना. और सैचुरेटेड होगा तो किससे जलेगा, ब्लू फ्लेम से. दूसरा अपन एग्जांपल क्या ले सकते हैं इसका, हियर अनदर एग्जांपल, वी कैन डू द रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर. ठीक है, ये दो टेस्ट ट्यूब है. पहले वाले में मैंने लिया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरे में लिया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ठीक है, ब्रोमीन वाटर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन. ठीक, या रेड कलर भी बोल सकते हो, है ना.
Got this? As we are going to put this bromine water in both the test tube, if the color will remain same, मतलब ये पूरा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों कलरलेस थे, जैसे ही ब्रोमीन वाटर डाला रेड कलर का था, इट विल रिमेन एज सच एज अ रेड कलर ओनली, देन वी कैन से योर कंपाउंड इज सैचुरेटेड. और अगर मैंने जैसे ही रेड कलर इसमें डाला और तुम्हारा कलर क्या हो गया, ये कलरलेस हो गया. ठीक है. इफ इट इज गोइंग टू बी कलरलेस वी कॉल्ड इट एज ए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. तो जब भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा इट decolorizes the color of bromine water. bromine water का कलर गायब हो जाएगा. और अगर कलर will remain as such then we call it as a saturated हाइड्रोकार्बन. आगे बात समझ में. सो क्या क्या पढ़ लिया अपन ने. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन हो गई. इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव मतलब कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और भी कोई ग्रुप जुड़ा हो, कोई एलिमेंट जुड़ा हो उसमें. ठीक है. फिर किसकी स्टडी कर रहे हैं. हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन क्या हो गया. द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन, दे आर नोन एज द हाइड्रोकार्बन. फिर हाइड्रोकार्बन को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है. वन इज योर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनदर इज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सैचुरेटेड कौन से हुए जिसमें सिंगल बॉन्ड है. अनसैचुरेटेड कौन से हुए विच हैव डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन दैट. ठीक है. अब पहचानेंगे कैसे. दोनों को जलाया अपन ने. when we are start burning them, if it burns with the blue flame we can say it is the saturated hydrocarbon, and if they are going to burn with the yellow flame we call them as a unsaturated hydrocarbon. है ना. और इसका एक और केमिकल टेस्ट कौन सा है. ब्रोमीन वाटर टेस्ट. ब्रोमीन वाटर कौन से कलर का होता है. इट इज ऑफ दैट कलर. ठीक. तो दोनों में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में जैसे ही ब्रोमीन वाटर डाला, इफ द कलर विल रिमेन एज सच, रेड का रेड ही रहा, तो अपन क्या कहेंगे तुम्हारा कंपाउंड जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. बट इफ योर रेड कलर डिसअपियर्ड इमीडिएटली एज वी आर गोइंग टू मिक्स विद द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, देन व्हाट यू कॉल्ड इट एज ए दैट द कंपाउंड विल बी योर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. जैसे ही अनसैचुरेटेड में जाता है कलर डिसअपियर हो जाता है ना. मीन्स द रेड कलर डिसअपियर्स इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. क्लियर है सारी चीजें. ओके, थैंक यू.